Welcome my dear genius friends. Today we are going to study the chapter number 6 of social science. And the title of the chapter is Places of Indian Cultural Heritage. So as we know that the cultural heritage of India is rich and prosperous. Not only Indians but the foreigners are also attracted by the beauty of the places of cultural heritage of India. पूरी दुनिया से लोग जो हैं हमारे जो कल्चरल हेरिटेज के जो प्लेसेस है उसको देखने के लिए आते हैं. सो यू नो जो प्लेसेस हैं जो जिनको हम कल्चरल हेरिटेज का जो प्लेस बोलते हैं उसका जो सिलेक्शन है वो करता है यूनेस्को. तो उसके बारे में हम स्टडी करेंगे. फर्स्ट है केव ऑफ अजंता. सो ये जो अजंता का केव है वो है औरंगाबाद इन महाराष्ट्र. The famous cave of Ajanta is situated in Aurangabad in Maharashtra, and there are important for point of view of arts and वास्तु. यहाँ पे आपको कला और वास्तु दोनों का संगम देखने को मिलता है. These caves are divided into two divisions. First is caves based on wall paintings. Second is caves based on sculpture. Now cave number 1, 2, 10, 16 and 17 have marvelous wall paintings. दीवालों पे अद्भुत पेंटिंग की गई है and still they are very decorative. The themes of these paintings is Buddhist religion. और ये जो themes है, ये जो paintings है वो Buddhist religion पे based है. Ajanta caves are divided into two categories, चैत्य and विहार. In old times जो बुद्ध monks होते थे they used to travel in the whole country or during the monsoon they stayed at a place and these places were known as Chaitya and Vihar. Okay, now cave number 9, 10, 19, 26 and 29 are Chaitya and the remaining caves are Vihars. Okay, in 1819 British captain John Smith discovered Ajanta caves. This question has been asked many times. Who discovered Ajanta caves? तो British captain John Smith discovered Ajanta caves. And you know, as the time has passed, human interference and natural regions have damaged the caves. But still, they are the center of attraction for the whole world. Now Ellora caves. So Ellora caves are also situated in Aurangabad in Maharashtra and there are 34 caves in Ellora. Ellora में 34 गुफाएं हैं and they can be divided into 3 groups. उनको हम 3 ग्रुप में बांट सकते हैं. Cave number 1 to 12 they are Buddhist caves. Cave number 13 to 29 they are Hindu caves and from 30 to 34 they are Jain caves. ओके तो ये 3 धर्म है उनका हमको संगम यहाँ पे देखने को मिलता है. बौद्ध, हिंदू एंड जैन तीनों धर्म की जो केव्स है वो एलोरा में हमको देखने को मिलती है. हिंदू केव्स वेयर बिल्ट ड्यूरिंग द रेन ऑफ राष्ट्रकूट डायनेस्टी. राष्ट्रकूट राजाओं के समय में हिंदू केव्स बनी थी. एंड कैलाश टेम्पल इज सिचुएटेड इन केव नंबर 16. द क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड मेनी टाइम्स where is Kailash temple situated? So Kailash temple is situated in caves of Ellora and in cave number 16 and this temple is 50 meter long, 33 meter wide and 30 meter high. And you see the most fascinating thing is कि ये पूरा जो मंदिर है इसको बनाने में more than 130 years लगे थे. And one thing more कि ये पूरा एक रॉक थी उसको कट करके ये मंदिर को बनाया गया है. ओके, जो मंदिर को बनाने के लिए बाहर से कोई भी चीज नहीं लाई गई थी. जो एक बड़ी सी रॉक थी उसको बनाया गया था. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि मंदिर को ऊपर से नीचे बनाया गया था. नीचे से ऊपर नहीं बल्कि ऊपर से नीचे. एंड यू कैन इमेजिन हाउ स्मार्ट दोज आर्टिसंस वेयर. ऐसा जस्ट इमेजिन कि खाली एक हथौड़ी या एक छेनी कहीं पर लग जाती, एक चीजल लग जाती तो क्या होता, पूरा जो टेम्पल था वो नष्ट हो जाता. बट देयर इज नॉट इवन अ सिंगल मिस्टेक इन दिस टेम्पल. ओके, सो दिस शोज
the greatness of the Hinduism. And these caves were constructed during the time of 600 AD to 1000 AD. यानी 400 साल में जो एलोरा की केव्स थी वो बनी थी. एंड इट इज ए ग्रेट एग्जाम्पल ऑफ टेक्नोलॉजी. नाउ एलिफेंटा केव्स. दीज केव्स आर built in Arabian Sea 12 kilometers away from मुंबई. आपको अगर एलिफेंटा केव्स देखने जाना हो तो मुंबई में जो गेटवे ऑफ इंडिया, वहां से बैठ करके इन ए बोट और ए शिप यू हैव टू गो टू द एलिफेंटा केव्स. एंड यू सी देयर आर 7 केव्स इन एलिफेंटा केव्स. देयर इज ए ह्यूज स्टेच्यू ऑफ एलिफेंट. सो व्हेन द पोर्टुगीज सॉ इट फर्स्ट टाइम दे नेम्ड इट एलिफेंटा. उन्होंने हाथी की एक स्टेच्यू देखी थी, देयरफॉर द पोर्टुगीज called it Elephanta. There is a famous statue of Trimurti in cave number 1. ब्रह्मा विष्णु महेश की एक स्टेच्यू है, इसको हम त्रिमूर्ति बोलते हैं. इट इज इन केव नंबर 1. कीप इन माइंड, आई एम clarifying everything, but you have to keep it in your mind. In 1987, UNESCO has placed Elephanta Cave in the list of World Heritage. In 1987, keep in mind. And you see, local fishermen called it Dharapuri. This question has been also asked many times. What do the local fishermen call Elephanta Caves? So the local fishermen called it Dharapuri. Now Mahabalipuram. Mahabalipuram is located 60 kilometers away from Chennai. 60 kilometers. This city of Tamil Nadu is famous for temple architecture and seashore. Chennai is famous for temple architecture and seashore. Narasimhavarman I, who is known as Mahamall, belonged to Pallav dynasty. Mahamall, Mall means wrestler, पहलवान. पहलवान को हम बोलते हैं मल्ल. तो नरसिम्हवर्मन was a great wrestler, तो उसको पदवी दी गई थी महामल, और उनके नाम से यहां का नाम पड़ा महाबलीपुरम. ओके, देयर आर 7 chariot temples in this place. These temples were built in Mahabalipuram. Now at present only 5 chariots exist, and the rest of the 2 temples have drowned in the sea. And there is an amazing figure of Lord Vishnu in smiling pose. This question has been also asked. Where is the statue of Lord Vishnu in smiling pose? So it is in Mahabalipuram. And there is a statue of goddess Durga slaying Mahishasur. It is also a great statue. Mahabalipuram was a famous harbor of ancient time. यहाँ पे जो it was a great city. It was famous for business. तो यहाँ पे जो पोर्ट था, हार्बर थे बहुत सारे. This question has been also asked. Which ancient city was a famous harbor? So it was Mahabalipuram. There are famous rock sculptures in Mahabalipuram. Now Pattadkal Memorial. So Pattadkal was capital of Chalukya dynasty. It is 16 kilometers from Badami Nagar. Keep in mind, 16 kilometers from Badami Nagar. Dravid style of architecture is used in construction of temples here. पट्टदकल में द्रविड़ स्टाइल का यूज किया गया है. Okay, keep in mind this question has also been asked. Which style has been used in Pattadkal Memorial? So it is Dravid style. Virupaksha temple is the biggest temple in Pattadkal. Now temples of Khajuraho. So the temples of Khajuraho are situated in a small village near Khajuraho at Chhattisgarh district of Madhya Pradesh. Khajuraho नाम का एक गांव है, उसका डिस्ट्रिक्ट है छतरपुर. वहां पे इट इज इन मध्य प्रदेश. वहां पे ये खजुराहो के मंदिर आए हुए हैं. खजुराहो वॉज एंशियंट कैपिटल ऑफ चंदेल राजपूत. चंदेल राजपूतों की राजधानी थी खजुराहो. द टेम्पल्स वेयर मेड ड्यूरिंग 50 to 105 AD. Okay, presently 25 temples are in existence. In the beginning, when they were constructed, when they were built, there were 85 temples. 85 temples थे, उसमें से आज खाली 25 का एग्जिस्टेंस बना हुआ है, और बाकी जो टेम्पल्स हैं वो बर्बाद हो चुके हैं.
Most of them are Shiva temples. They all have similar types of architecture and sculpture. And famous temples are Chaushad Yogini temple, Khajuraho temple, Lakshman Dev temple. These are the famous temples of Khajuraho. The temple were constructed with granite stone. Khajuraho temple were constructed in Nagar style. Keep in your mind, the style of making Khajuraho temple was Nagar style. Now Sun temple of Konark. It is situated near the Bay of Bengal in Puri district, Odisha. And it was constructed in the 13th century during the reign of the king Narsivarman I. There are two sun temples. One of them is in Gujarat in Modhera and the other is in Konark. Okay, दिस इज चैरियट टेम्पल. चैरियट टेम्पल क्या होता है? ये हम रथ का जैसा बनाते थे, रथ जैसा होता था. एंड मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग, दे वर मेड ऑफ स्टोन. और जो उसके जो व्हील्स होते हैं हम उसको मूव कर सकते हैं. सच फैसिनेटिंग वॉज द आर्ट. एंड और टेम्पल का मैं डिस्क्राइब कर रहा हूं आपको कि वो कैसा टेम्पल है. 7 हॉर्सेस आर ड्राइविंग द चैरियट. 7 घोड़े उस चैरियट को खींच रहे हैं. तो 7 जो घोड़े हॉर्सेस वो किसको से इंडिकेट करते हैं? वो 7 डेज को दर्शाते हैं. देयर आर 12 मासिव व्हील्स. 12 व्हील्स है. तो 12 व्हील्स क्या करते हैं? 12 प्रहर को दर्शाते हैं. ओके. एंड देयर आर 8 स्पोक्स. 8 स्पोक इन ईच व्हील. हर व्हील में क्या है? 8 स्पोक है. तो जो 8 स्पोक है वो क्या दर्शाते हैं? 8 प्रहर को दर्शाते हैं. और 12 जो व्हील है वो दिखाते हैं 12 मंथ्स को. ओके. दिस टेम्पल हैज बीन बिल्ट बाय ब्लैक स्टोन, हैंस इट इज कॉल्ड ब्लैक पैगोडा. इस मंदिर को बनाने में काले पत्थर का उपयोग किया गया है. इसको हम इसलिए बोलते हैं काला पैगोडा, ब्लैक पैगोडा. क्वेश्चन पूछा गया है मेनी टाइम्स, विच टेम्पल इज नोन एज ब्लैक पैगोडा? सो इट इज द सन टेम्पल ऑफ Konark. And why? Because black stone was used in making the temple. These remains reflect the sculpture and civilization of the 13th century of Odisha. Now Brihadeshwar temple. This temple is Tanjore in Tamil Nadu. आपको हर चीज दिमाग में रखने की, कौन सा जो प्लेस ऑफ हेरिटेज कहां पर है, कितना डिस्टेंस है उसका, कब बना था. यू हैव टू कीप ईच एंड एवरीथिंग इन योर माइंड. दिस टेम्पल वॉज बिल्ट इन 1003 AD to 1010 AD. दिस इज ए शिवा टेम्पल. दिस टेम्पल वॉज बिल्ट बाय राज राजा ऑफ चोला डायनेस्टी. इट इज नोन एज राजराजेश्वर टेम्पल. क्वेश्चन में भी आप, विच टेम्पल इज नोन एज राजराजेश्वर टेम्पल? इट इज बृहदेश्वर टेम्पल. The height of the temple is 500 feet and the width is 250 feet. Its summit is 200 feet high above the ground. ये ground से 200 feet ऊंचा है. And this is a marvelous heritage of architectural art of India due to its gorgeous and huge size of pinnacle and artistic decoration. इसका जो मार्वलस जो स्ट्रक्चर है और इसका जो डेकोरेशन है, इसके कारण इसको अपने एक प्लेस ऑफ हेरिटेज मानते हैं. दिस टेम्पल वॉज कंस्ट्रक्टेड इन द्रविडियन स्टाइल. ये भी द्रविड़ स्टाइल में बना था. कुतुब मीनार. कुतुब मीनार इज लोकेटेड इन दिल्ली एज वी नो. इट वॉज बिल्ट बाय इन 12th century बाय कुतुबुद्दीन ऐबक. कुतुबुद्दीन ऐबक ने उसको बनाना शुरू किया था, बट ही डाइड. उसके बाद उसका जो सन इन लॉ था जमाई इल्तुतमिश, उसने इसका कंस्ट्रक्शन पूरा कराया था. बट अभी हिस्टोरियंस कह रहे हैं कि नो, इट वाज नॉट बिल्ट बाय कुतुबुद्दीन ऐबक. इट वाज अ कंस्ट्रक्शन विच वाज मेड बाय अ हिंदू किंग. ओके. सो कुतुबुद्दीन ऐबक वॉज फाउंडर ऑफ गुलाम डायनेस्टी. गुलाम क्या होता था कि एट दैट टाइम जो इन्वेडर्स थे वो अपने साथ गुलाम लेके आते थे, उसको खरीदते थे, उनको बोलते थे गुलाम. तो गुलाम वंश की स्थापना की थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने. आफ्टर हिज डेथ हिज सन इन लॉ इल्तुतमिश फिनिश द वर्क.
द हाइट ऑफ द कुतुब मीनार इज 72.5 मीटर. इट वॉज बिल्ट बाय रेड स्टोन एंड मार्बल. हाइट वगैरह भी याद रखनी है. इट्स सरकमफ्रेंस इज 13.75 मीटर एट इट्स बेस एंड इट इज रिड्यूस्ड 2.75 मीटर एट इट्स टॉप. जो नीचे उसका बेस है वहां पे उसका सरकमफ्रेंस है 13.75 मीटर और टॉप पर इसका जो सरकमफ्रेंस है वो रह जाता है 2.75 मीटर. वर्सेस ऑफ कुरान वेयर एनग्रेव्ड ऑन इट. कुरान की जो आयत है वो इस मीनार के ऊपर लिखी गई है. नाउ हम्पी इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ तुंगभद्रा नदी के किनारे पर हम्पी है. इट इज इन हॉसपेट इन बेल्लारी डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका में बेल्लारी डिस्ट्रिक्ट है. वहां पे जो तालुका है उसका नाम है हॉसपेट. वहां पे ये हम्पी आया हुआ है. विजयनगर किंगडम वॉज एस्टेब्लिश्ड बाय टू ब्रदर्स हरिहर राय एंड बुक्का राय. ये विजयनगर साम्राज्य की स्थापना का एक पार्ट माना जाता है. दो भाई थे हरिहर राय एंड बुक्का राय. उन्होंने इस साम्राज्य की स्थापना की थी, विजयनगर साम्राज्य की. द किंग्स ऑफ विजयनगर वेर ग्रेट लवर्स ऑफ आर्ट. द पीरियड ऑफ सम्राट कृष्णदेव राय इज कंसिडर्ड टू बी द गोल्डन पीरियड ऑफ आर्ट. सम्राट कृष्णदेव राय, आप जो तेनालीरामन सीरियल देखते हैं उसमें जो राजा बताए गए हैं वो सम्राट कृष्णदेव राय हैं. ही वॉज अ ग्रेट लवर ऑफ आर्ट और उनका जो शासनकाल था उसको हम गोल्डन पीरियड ऑफ आर्ट कहते हैं. द मेन फीचर्स ऑफ विजयनगर आर्ट वेयर टू कार्व आउट मैग्निफिशिएंट पिलर्स एंड कॉलम्स फ्रॉम स्टोन्स. जो ये पिलर्स और कॉलम्स के लिए ये जो आर्ट है बहुत ही फेमस है. द फिगर्स ऑफ गॉड गॉडेसेस ह्यूमन एनिमल्स वॉरियर्स डांसर्स वेर एनग्रेव्ड ऑन द पिलर्स. पिलर्स के ऊपर देवी देवता मनुष्य प्राणी सबकी जो मूर्तियां थी वो बनाई जाती थी. विरूपाक्ष टेम्पल एंड अच्युतराय टेम्पल ऑफ लॉर्ड कृष्णा आर द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ आर्किटेक्चर. इस साम्राज्य के दो टेम्पल बहुत फेमस है. फर्स्ट वन इज द विरूपाक्ष टेम्पल एंड द अदर इज अच्युतराय टेम्पल. अच्युतराय ये भगवान कृष्ण का मंदिर है. भगवान कृष्ण का ही एक नाम है अच्युतराय. ओके सो फ्रेंड्स, यहाँ हमारा फर्स्ट पार्ट जो हम पूरा कर रहे हैं. सेकंड पार्ट के लिए आपको वेट करना होगा. एंड डू नॉट फॉरगेट टू लीव कमेंट्स एंड हिट द स्ट्राइक बटन. थैंक यू वेरी मच.